Hello students. So in the last session we have started the adjustment of capital in case of new partner. So now I am going to discuss one more illustration from your book, that is illustration 56. So what is that? First of all, they have given the balance sheet. In balance sheet we have a lot of accounts which are to be distributed. Like asset side पे आपके पास है goodwill. So this is old goodwill. This is to be written off. Then advertisement suspense account. This also is to be written off. Then afterwards investment fluctuation fund is given. Investment की market value भी आपको दी है, तो it means आपने उसको भी adjust करके खत्म करना है उस अकाउंट में. Then afterwards workman compensation reserve is there. So workman compensation reserve का हम लोग देखेंगे claim. और क्लेम के बाद अगर कुछ बचता है तो दैट इज टू बी एप्रोप्रिएटेड अमंग द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज दैट? A readmit C in the firm and A sacrificed 1/3 of his share and B sacrificed 1/10 from his share in favor of C. So here sacrificing ratio you are to find out very carefully. Here A's sacrifice would be 1/3 of his share. So A का sacrifice कितना होएगा? 1/3 into 3/5. So his here means A's share. So यहाँ पे A का sacrifice कितना हो गया? That is 1/5. Similarly, B's sacrifice it's given to you 1/10. And 1/10 from what is there? It means this is sacrificing share is given. अब sacrificing ratio कैसे आती है देखो ध्यान से. 1/5 and 1/10. These are the sacrificing shares. So it means 2:1 would be your sacrificing ratio by equalizing the denominators in both. It would be multiplied by 2/2. That is 2:1. And where we are to apply the sacrificing ratio? The premium part, premium of goodwill. So what is given in the second point? C's loan will be converted into his capital. तो C's loan बेटा liability side पे है आपके पास 1,50,000. अब C के लोन को आपने उसकी कैपिटल बनानी है. So what will be the journal entry? C's loan account debited to C's capital account 1,50,000. Fine. So that is why now loan would be deleted from the balance sheet. In the next balance sheet you will not have to write the loan. Fine. So in posting capital accounts you will write by C's loan account 1,50,000. अब ये लिखते हैं by cash. अब ये कैश की फॉर्म में नहीं लेके आया, इसका लोन ही पड़ा था वही हमने बना दिया. और जो बाकी ए और बी के प्रॉब्लम्स होंगे लाइक दिस 88 and 197. Fine. Then C brings 60% of his share of goodwill in cash. तो यहाँ पे goodwill का कंसेप्ट क्या है कि 60% is to be open as premium account because it is brought in cash and 40% by current account. Clear? So यहाँ पे आपके दोनों मेथड कंबाइंड हो रहे हैं. जितनी भी गुडविल होगी उसके अकॉर्डिंगली जितना सी का शेयर बनता है वो 60% लेके आया, मतलब प्रीमियम कंसेप्ट, और बाकी मींस 40% वो नहीं लेके आया, मींस करंट अकाउंट कंसेप्ट. फाइन. Now on the board I have calculated the goodwill which is with the formula we get 3 lakh. और C का शेयर कितना बनता है? 3 लाख का 3/10 that is 90,000. अब 90,000 का आपने करना है 60 and 40%. 60% क्योंकि वो लेके आया तो प्रीमियम अकाउंट में हमारी दो एंट्रीज होंगी. बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम that is 54,000, 54,000. Then premium for goodwill account debited 54,000 to A's capital to B's capital. So it means 2:1 would be the sacrificing ratio in which you will appropriate your 36,000 and 18,000. Then rest 40% is 36,000. वो कैसे आया? 19,000 में से 54 को लेके आया. It means बाकी नहीं लेके आया. The difference 36,000 is to be gone in
current account with 2 A's capital, 2 B's capital. It means A और B की capital account में 2 एंट्रीज जाएंगी by premium and by C's current account. And C's current account is to be opened now, so it would be the part of asset side in the balance sheet. So asset side में हमने क्या लिख देना है? C's current account like this. C's current account would be 36,000. And in bank account you will open the bracket और आपका old balance plus 54,000 जो वो प्रीमियम लेके आया. And already we have cash in hand. We have given 1,25,000. So 1,25,000 plus 54,000 would be the output figure. देखते हैं कुछ और तो नहीं, otherwise you will deduct accordingly. Now the fourth point is related with the goodwill, the super profit method. This you have done in the chapter 3rd. Then land and building was found undervalued by. अब land and building कम है, it means asset आपका कम है, आपने increase करना है. So it would be land and building account added to revaluation. So ये आएगा हमारा यहाँ पे by land and building. Similarly, in the balance sheet we will adjust the land and building like this, old plus 25,000. जितनी आपकी land and building की value है, that is 30,000 और plus 25,000. This is the undervaluation. Then after that, stock is found overvalued by. तो stock आपका ज़्यादा आपने कम करना है, that is by 35,000. So here stock को आपने कर देना है minus 35,000. Is it clear? Then afterwards, provision for doubtful debt is to be maintained 5%. So provision on debtors, 50,000 are your debtors, 5% is the provision, 2,500 we need. But we have 5,000. It means आपने decrease करनी है. जो extra 2,500 है, that is to be written off. So you will debit the reserve by provision 2,500. The difference would be deleted from the books. Fine. So by यहाँ पे आएगा debtors 50,000 minus 2,500. एक और debtors की transaction है यहाँ पे. Sixth point देखो पहले, claim on workman compensation is 5,000 and we have workman compensation reserve 10,000. So claim आ जाएगा आपका balance sheet में यहाँ पे 5,000 since it is a liability, and rest 5,000 would be a part of partner's capital account by workman compensation claim. Then afterward, an unrecorded accrued income. So accrued income is your asset and you know about this. और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5,000 accrued income के नाम से. Then afterwards, we have a debtor whose dues of 25,000 were written off as bad, paid 20,000 in full settlement. अब इसका मतलब क्या होता है कि कुछ एक डेटर्स जिनका आपने राइट ऑफ कर दिया था, written off as bad debt, paid 20,000 in full settlement means कि जितना भी आपके डेटर्स थे दी 25,000 के, उन्होंने आपको 20,000 पे करा है. सो पे करा मतलब बैंक में आएगा. और कितना आएगा? एक्चुअल वी हैव पेड 20,000. और इस 20,000 को आपने बेटा बैड डेट लिख दिया था अपनी बुक में, और वो इनकम जो आपने सोचा नहीं था आपको आने हैं पैसे, अगर वो आए तो दैट इज अ बैड डेट रिकवर्ड. And since it is your income, you will credit in revaluation account. So here you will write by bad debt recovered account 20. और डिफरेंस जो होगा, जैसे आपकी बुक में डेटर है 25 और उन्होंने दिए हैं 20, तो उसका आपने कुछ नहीं करना. No need to have any adjustment because we are only concerned with the cash which is coming in, our income only. Fine. So the next point which is most important, capital accounts of the partner were to be readjusted on the basis of C's capital in profit sharing ratio. Any deficiency or excess to be adjusted in the payment of receipt or payment. It means आपने जो difference adjust करना है
दैट इज टू बी एडजस्टेड इन द कैश फॉर्म। मतलब कि आपने कैपिटल एडजस्टमेंट करने के बाद जो आपके अकाउंट में यहाँ पे बैलेंस आएगा वो आपके लिए नेट बैलेंस करेगा एंड व्हाट विल बी योर जो बैलेंसिंग फिगर यू विल डिनोट बाय टू बैंक because bank account is running here, two bank and one bank. So next I will solve the capital adjustment and for this we need the new ratio. अब यहाँ पे बेटा न्यू रेशियो का कौन सा केस लगेगा, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, बिकॉज वी हैव गिवन द सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो हमने पहले न्यू रेशियो निकालनी है, फिर इनके कैपिटल बैलेंस सारे सम अप करके वो लेने अपनी वर्किंग नोट में, देन वी विल डिवाइड द कैपिटल अकाउंट इनटू द न्यू रेशियो, आफ्टर दैट यू विल बैलेंस एंड फाइनली क्लियर दीज अकाउंट्स। ठीक है, फॉर दिस वी हैव मोर थिंग्स इन आवर बैलेंस शीट। एक मैंने आपको बोला था गुडविल, वो आपने यहाँ नोट करनी है टू गुडविल इन द ओल्ड रेशियो which is lying in the balance sheet 5000, तो यहाँ पे आ जाएगा 3000 and 2000। clear? Now next is investment fluctuation fund. So investment fluctuation fund is 5000 और हमारी मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में डिफरेंस कितना है 2500 का, और बाकी रिजर्व पार्टनर्स के लिए कितनी बची, ऑब्वियसली 2500। so that is to be appropriated like this by investment fluctuation fund। 2500 would be divided in 3:2 ratio in the old ratio। Finally, you will check whether any item is left, कोई journal reserve तो नहीं है। And one more important thing is there, employees provident fund पे आपका कोई हक नहीं है। Employees provident fund होता क्या है कि employees अपनी इनकम में से पीएफ कटाते हैं, जैसे हम अपनी इनकम में से कटाते हैं ना जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं, तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज द डिडक्शन फ्रॉम देयर इनकम एंड इट इज लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर अकाउंट। कि जब उसने जॉब छोड़नी है तो वो फंड उसको इकट्ठा होकर मिल जाएगा, जिसको ईपीएफ कहते हैं। सो इस पे पार्टनर्स का कोई हक नहीं है। तो कोई भी पार्टनरशिप के चैप्टर्स में आपने इसको एज इट इज अपनी लाइबिलिटी साइड पे लिख देना, इट इज नॉट एट ऑल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। Then one more thing is left here, advertisement suspense account. So advertisement suspense account is the fictitious loss. Again 5000 figure is there, तो आपने 3000 2000 in the old ratio। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट में जितनी भी आइटम्स आपने अप्रोप्रिएट करनी है दैट आर ऑलवेज इन द ओल्ड रेशियो। न्यू पार्टनर को बेचारे को कुछ नहीं मिलना। ठीक है, सो फाइनली कैपिटल एडजस्टमेंट वुड बी देयर। सो फॉर दिस कैलकुलेट आवर न्यू रेशियो। नाउ आई हैव कैलकुलेटेड द न्यू रेशियो। सो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइस मैंने आपको लास्ट लिखा था ब्लैक बोर्ड पे 1.5 on A's share and 1.10 on B's share। And one thing more here, C's share is not given। तो दिस इज ऑलवेज जो ए और बी दे रहे हैं तो वो किसको दे रहे हैं, सी को। हियर आई हैव इन ब्रैकेट्स ऑल सीज शेयर, एज सैक्रिफाइस प्लस बीज सैक्रिफाइस इक्वल्स टू सीज शेयर। सो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस 2/10 would be 2/5 would be A's new। Similarly 3/10 and 3/10 ये आ गई सी की, और लास्ट में इसका बेस बराबर करके दिस इज द न्यू रेशियो 4:3:3। और अगला स्टेप हमारा क्या होता है, पूरी फॉर्म की न्यू कैपिटल निकालना, और टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म इज न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू इट्स रेसिप्रोकल, उसके शेयर का रेसिप्रोकल। सो बेटा सी कितने शेयर किया है 3/10 और उसका मैंने कर दिया 10.3। टोटल कैपिटल हमारी आ गई 5 लाख, और 5 लाख को हमने क्या करा है, एज कैपिटल और बीज कैपिटल निकाली है, जो हमने खुद अपने कैरी डाउन लिखने हैं, जो मैंने आपको लास्ट समझाया था, जो हमारा चारू हर्षा और विशाली वाला क्वेश्चन था। और यहाँ पे हमने क्या किया 2 लाख and 1,50,000। सो दिस आई हैव रिटन टू बैलेंस कैरी डाउन द कैपिटल बैलेंसेस 2 लाख 1,50,000 and 1,50,000। अब सारा कुछ पुट करने के बाद आपने बैलेंस कैरी डाउन के लिख दिए। नाउ यू विल बैलेंस द कैपिटल अकाउंट्स, और कैपिटल अकाउंट के बैलेंस करने के बाद आपका जो बी पार्टनर है उसकी डेबिट साइड छोटी आएगी, और उसका डिफरेंस इज टू बी रिटन लाइक दिस 2 बैंक। 2 बैंक का मतलब कि ये इतना पैसा अपना निकाल के ले जाएगा, और इसको हमने बैलेंस शीट में से क्या करना है, माइनस। सिमिलरली पार्टनर ए इज हैविंग डेबिट साइड लार्जर, तो उसके क्रेडिट में हमारी फिगर आएगी बाय बैंक बाय 43,000,
और नीचे आपने लिख देना इसको बैलेंसिंग फिगर। और बाय बैंक मीन्स कि दिस इज योर कैश इज कमिंग इन। तो बैंक की ब्रैकेट बेटा हमने खोली हुई है, उसमें हमने ऑलरेडी क्या करा, अब हमारा ओल्ड कैश बैलेंस, फिर जो 60% प्रीमियम लेके आया था, देन थर्ड वन इज आर 20,000 बैड डेट रिकवर्स। अब ये फोर्थ वन क्या होएगा प्लस 43,000 और फिफ्थ वन क्या होएगा माइनस 13,000 एंड रेस्ट फिगर यू विल राइट ऑन द आउटर कॉलम इन द बैंक अकाउंट। फाइन, सो इन दिस वे यू विल हैव टू फाइंड आउट द न्यू रेशियो, ठीक है जी, और न्यू कैपिटल कैलकुलेशन एंड लास्ट बैलेंस शीट में जो आपने कैपिटल्स लिखनी है वो कैरी डाउन में लिखनी है। इन द सेम वे दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट। सो आपने इसके सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं एंड द वर्किंग नोट मस्ट बी इन द प्रॉपर वे, बिकॉज क्वेश्चन पेपर में क्या होता है बेटा, वर्किंग नोट के ही मार्क्स होते हैं कि आपने हर चीज को कैसे परफॉर्म करा, वेदर द एग्जामिनर जज की आपने चीट तो नहीं करा, तो हर चीज का प्रूफ देना पड़ता है कि अगर कैपिटल इतनी आई तो कैसे आई, रेसिप्रोकल करके। फिर उसके बाद हमें ये जो निकाली हमें कैसे निकाले, आफ्टर कैलकुलेटिंग द न्यू रेशियो। एंड मोर ओवर जो भी आपकी पुरानी बैलेंस शीट होती है उसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स और लॉसेस, ये सारे आपने फिनिश करने होते हैं सो दैट वी आर नॉट गोइंग टू कैरी ऑन द न्यू बैलेंस शीट। सिमिलरली एक यहाँ मैंने पुट करा था बाय रीवैल्यूएशन। सो बाय रीवैल्यूएशन मींस दिस इज द गेन ऑफ रीवैल्यूएशन। ये आपको कैसे पता चलेगा अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने के बाद, और रीवैल्यूएशन अकाउंट का गेन भी आपने किस रेशियो में करना है, in the old ratio. Now students, we are going to start our next case. Case second of capital adjustment, that is highlighted in 60th illustration from your book. So in 60th illustration, we are going to solve revaluation account, partners capital account and balance sheet. Now, first of all from the balance sheet we have two things to distribute. First is general reserve in the old ratio. Then next is workman compensation reserve. If claim is there, then you will distribute the rest reserve. So, general reserve first of all आपने यहाँ पे put करने हैं by balance bottom, then by general reserve, then by workman compensation reserve. So general reserve is 50,000, 1,50,000. That is to be appropriated in 3:2 ratio. That means 90,000 and 60,000. And workman compensation reserve we have 50,000 and claim is 20,000. So 30,000 is left for the partners. That will be appropriated in 3:2 ratio. That comes 18,000 and 12,000. Fine. So next point जो आपको एडजस्टमेंट में दिया है, फर्स्ट पॉइंट वो क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 20,000. सो प्रोविजन आपने बढ़ानी है, सो रीवैल्यूएशन में क्या आएगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20,000 और बैलेंस शीट में क्या आएगा, 20,000 आपकी न्यू और 10,000 आपकी ओल्ड। तो बैलेंस शीट में बेटा डेटर्स में से हमने 30,000 डिडक्ट करना, क्लियर। देन afterwards we have given value of land and building would be increased to 2. तो मैंने आपको 2 और by का डिफरेंस समझाया था। 2 मतलब आपने डिफरेंस लेना और by मतलब आपने उसी से एंट्री पास कर देनी है। तो इंक्रीज टू 1,80,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग की हमारी पहली वैल्यू है 80,000. इट मीन्स यू विल रेज लैंड एंड बिल्डिंग बाय 1 lakh. So next is the value of stock would be increased by 40,000. Similarly, stock भी आपने 40,000 का बनाना है, तो by stock क्या आएगा हमारा 40,000. Clear जी? Then afterwards, the liability again workman compensation this is done. Then C dot 1 lakh as in cash as is share of goodwill. So share of goodwill को लेके आए means it is to be posted to the premium account. So यहाँ पे क्या आ रहा है by premium for goodwill account. 1 lakh is to be appropriated in the sacrificing ratio. So अगर आप चेक करो तो sacrifice के बारे में कुछ नहीं लिखा. It means आपने 3:2 ही आपकी sacrificing आएगी. That is to be distributed in A and B. Afterwards, what they have written, C would bring
that is equal to 20% of the total capital of new firm after making all adjustment. It means अब यहाँ पे A और B की कैपिटल बेटा आपने नहीं चेंज करना. Try to translate that line given in the last point. 20% of the total capital of new firm. अब न्यू फर्म की टोटल कैपिटल आगे हम कैसे निकालते थे? न्यू पार्टनर का शेयर रेसिप्रोकल करके. अब यहाँ पे न्यू पार्टनर की कैपिटल इज नॉट गिवन, तो हमने पुराने पार्टनर की सपोर्ट लेनी है. वी विल एडजस्ट द न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू द ओल्ड पार्टनर्स. तो आपने इसमें क्या करना है, सारा कैपिटल अकाउंट आपने जिस तरीके से आप सारी एप्रोप्रिएशन करते हो आपने कर लेनी है. फिर आपने कैरी डाउन यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं और इसको वर्किंग नोट्स में लिख दिया. एंड यू विल ऐड बोथ द बैलेंस ऑफ ए एंड बी. सो यहाँ पे हमारा एक चीज रहेगी है रिवैल्यूएशन. रिवैल्यूएशन का हमारा फिगर आता है प्रॉफिट. सो बाय रिवैल्यूएशन पुट करके आपने इनको कर देना बैलेंस. और यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन ए और बी का आपने लेना. दैट इज 3,40,000 एंड 2,60,000. यहाँ पे आना हमारा 3,40,000 एंड 2,60,000. सी का भी आना. दैट इज व्हाई आई हैव क्लियर्ड द स्पेस फॉर बाय देन. तो 3 लाख यहाँ पे आपने वर्किंग नोट में हेडिंग डाली है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. सो यू विल राइट कैपिटल बैलेंस ऑफ ए आफ्टर एडजस्टमेंट. दैट इज 3,40,000. Similarly, capital balance of B after adjustment 2,60,000. तो ये बन गया हमारा 6 लाख. 6 लाख कैपिटल would be the total capital of A and B. अब हमने क्या लिखा है 20% of the total capital of new firm. अब total capital of new firm कैसे निकलेगी? A और B की सपोर्ट लेंगे. So you will write total capital of new firm. That is 6 लाख इंटू रेसिप्रोकल बेटा किसका करना है? ए और बी का. आप सोचो कि अगर 100% कैपिटल होती है उसमें से 20% सी ने लेके आनी है. सी ने लेके आने 20% और बाकी कितनी रहेगी 80%. दैट इज लेफ्ट फॉर ए एंड बी. इट मींस द गिवन कैपिटल 6 लाख इज फॉर द 80% शेयर. तो हमें इसको 80% का कर देना है रेसिप्रोकल. राइट. सो 80% का रेसिप्रोकल करके आपका आएगा 7,50,000. ठीक है जी. सो 7,50,000 क्या आया टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म. अब टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म का 20% लेके आना था सी ने. सो सीज कैपिटल वुड बी लाइक दिस. सीज कैपिटल वुड बी 7,50,000 into 20%. That comes 1,50,000. 1,50,000. ठीक है. तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ पे बाय कैश 1,50,000 और सी का आ जाएगा 1,50,000. इन दिस वे यू हैव टू बैलेंस. अब केस 1 और केस 2 में क्या डिफरेंस था? केस 1 में था कि हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल पता है और केस 2 में हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं पता. केस 1 में हमने क्या करा कि न्यू पार्टनर की कैपिटल के ऊपर न्यू पार्टनर का शेयर हमने करा रेसिप्रोकल और यहाँ पे पुराने पार्टनर की कैपिटल को करा टोटल और उनका रेसिप्रोकल किसका करा है? रिमेनिंग का. मतलब दिस इज ऑब्वियस कि अगर आपने न्यू पार्टनर की कैपिटल लेनी है तो उसका रेसिप्रोकल करना है. अगर आपने न्यू पार्टनर की कैपिटल इज नॉट मेंशन्ड तो अपने पुराने पार्टनर की पहले सारी एडजस्टमेंट करनी है. देन यू विल रेसिप्रोकल द रिमेनिंग शेयर और आपके दोनों तरीके से क्या आ जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म. और उसमें हमने टोटल कैपिटल के बाद क्या करा था? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने करी थी ए और बी की कैपिटल. और यहाँ पे हमें क्या करना है? सी इज द न्यू पार्टनर. सी की कैपिटल आपको निकालनी है. तो सी इज कैपिटल वुड बी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इंटू 20%. अगर होता कि कैपिटल उसका शेयर है 1/5 तो हमने 1/5 लगा देना. बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन दिया है उस तरीके से ही आपने कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है. सो देयर इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट क्रैमिंग इन दिस कंसेप्ट. बिकॉज अगली जो है इलस्ट्रेशन उसने कुछ डिफरेंट वे से दिया. नाउ
Next illustration, it would clear one more point when new partner's capital is not given the notion. Here, Gauri is new partner. Clear? So, Gauri's capital is not given the notion. If we read the question में देखो क्या लिखा हुआ है? Sahaj and Amisha partner, and they admit Gauri in the form, and Gauri brings proportionate capital for 1/3 share. So she brought her share of goodwill in cash. तो इतना बताया कि वो अपना गुडविल का शेयर कैश में लेके आई है, बट proportionate capital भी लेके आई है, but actual capital is not mentioned here. So again, when new partner capital is not given, you will have to support the old partners to take out the total capital of new firm. In the same way, I have solved this illustration. So starting from the first point, what they have written, reduce the value of stock by 5,000. तो आपने स्टॉक को कम करना है. Here I have put 2 stock. Then depreciate furniture by 10% and appreciate machinery by 5%. So एक चीज depreciate हुई है तो it would be 2 furniture, और machinery appreciate हुई है it would be by machinery. In the same way, 3,000 debtors were proved bad. So this is also clear in earlier illustrations कि जब भी आपके पास कोई bad debts होते हैं तो वो आपने किसमें से sort out करने हैं? अपनी provision में से. और यहाँ पे बेटा प्रोविजन भी आपने बनानी है 5%. सो डेटर्स हमारे पास थे 30,000 के, एंड ऑलरेडी वी डू नॉट हैव एनी प्रोविजन. सो इट मीन्स जो आपका 3,000 का नुकसान हुआ है ये आपकी प्रोविजन में से कवर होना था, और वो यहाँ पे ओल्ड प्रोविजन इज नॉट एग्जिस्टिंग. सो आपने इसको रीवैल्यूएशन में एडजस्ट कर दिया, और जो बाकी 5% है उसके ऊपर आपने प्रोविजन बनानी है. मीन्स 27,000 are the good debts which are left with you. उसके ऊपर आपको बनाना है 5%. So that comes 1350. This is your new provision. You have to create the provision. Fine. So finally you will get the loss. यहाँ पे आपका आएगा loss, और वो मैंने बुक कर दिया यहाँ पे by balance brought down, by journals of the balance sheet, by premium, क्योंकि हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में पढ़ा कि वो गौरी अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आई है. बेटा गुडविल लास्ट में दिया आपको 45,000. सो 45,000 का 1/3 अगर करें तो वो कितना आता है? 15,000. 15,000 is to be appropriated in old ratio since we do not have any sacrificing share. तो कितना आ गया हमारा? 15,000 का 2.3 and 1.3. 10,000 and 5,000. It comes your by premium. So this was all about the adjustment. और आपने गौरी की कैपिटल कैसे निकालनी है? Here I have calculated adjusted capital of Sahaj and Nilesh. तो ये कैसे आई है? जो आपने बैलेंस थे 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3, इनको बैलेंस करके और माइनस कर दिया ये, तो हमारे पास ये बैलेंसेस आ गए, और हमने इसको यहाँ पे लिख भी देना है और इसको वर्किंग नोट पे भी लेके जाना है. And by putting the working note, we will get our total capital of Sahaj and Nilesh. It would be 2,33,650. अब इसको मैंने कैसे ही टोटल किसके साथ कराया? 3/2. अब ये 3/2 कैसे है? रिमेनिंग शेयर. रिमेनिंग शेयर कैसे? जैसे मैंने लास्ट इलस्ट्रेशन में करा था 28 के. अब यहाँ पे हमें क्या दिया है कि जो गौरी है वो कितने शेयर के लिए आई है? 1/3. तो अगर 1/3 गौरी का है तो बाकी सहज और निलेश का है, तो बाकी मतलब 1 minus 1/3, 2/3. So 2/3 का हमने रेसिप्रोकल करना, because we want to get our total capital of new firm, and that was 3,50,475. और इसी तरीके से ये जो न्यू कैपिटल आएगी हमारी फर्म की, उसका 1/3 गौरी लेके आएगी, और वो कितना आ गया? 1,16,825. That will put here by 10, और ये हमें इसका by balance to balance करेगा 1,16,825. So in this way you are to solve all the cases related with the adjustment of capital. So by this your admission of partner chapter is over. In case you have faced any difficulty, any doubt in any point or in any illustration or practical problem, I am here to solve that.
And if you want any extra special class or video for this question for any practical problem, you will text me and I will sort out this. So now in next video we will start our 6th chapter.